آپ سبھی تیار ہیں آج کے کلام کے لیے؟ اونچی آواز میں بولو ہاللیلویا۔ اور رومیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 9 اور اس کی 10 دو آیات کو پڑھیں گے۔ رومیوں کا خط اس کا 2 باب اس کی 9ویں اور اس کی 10ویں دو آیات مقدسہ کو پڑھیں گے۔ اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی، پہلے یہودی پر، پھر بولو یونانی پر۔ آگے 10ویں آیت، مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی، پہلے یہودی کو پھر یونانی کو۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت رکھے۔ مل کر اونچی آواز میں بولنا آمین۔ آج بائبل میں سے ہم 2 طرح کی زندگیوں پر بات کریں گے، اور رومیوں 2 باب میں 9 اور اس کی 10ویں 2 ورسز میں ہمیں ان 2 طرح کی زندگیوں کا ثبوت حاصل ہوتا ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں، لکھا ہے جن کی زندگی میں مصیبت اور تنگی آتی ہے۔ تھینک یو لارڈ جیسس کرائسٹ۔ آگے ہو جو بچوں، ادھر ہو جو سب۔ اگر آپ ان دونوں آیات کو تصور کرو تو آپ کو ان دونوں ورسز کے اندر 2 طرح کا جیون نظر آئے گا، اور بائبل یہ بتاتی ہے یہ 2 طرح کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے الگ الگ طرح کے راستے چنے۔ میں پھر سے ان آیات کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 لکھا ہے، اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی۔ تو یہ پہلی قسم کے لوگ کون سے کہیں؟ بولیے، بولو بدکار لوگ۔ اور لکھا ہے پہلے یہودی پر پھر یونانی پر آئے گی۔ کیا آئے گی؟ بولو مصیبت اور تنگی، مصیبت اور تنگی۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں، بائبل کہتی ہے جن کو جلال، عزت اور سلامتی حاصل ہوگی۔ رومیوں 2 باب کی 9 اور اس کی 10۔ اب جلال، عزت اور سلامتی کن کو حاصل ہوگی؟ نیکوکار کو۔ بائبل کے اندر میں نے کہا یہاں پر 2 طرح کے جیونوں کی بات کی جاتی ہے، 2 قسم کے لوگوں کی بات کی جاتی ہے۔ پہلا وہ جو بدکاری کی راہ پر چلا، تو بدکاری کی راہ پر چلنے سے پہچان کیا حاصل ہوئی؟ بولو بدکار۔ کیا پہچان حاصل ہوئی؟ بدکار۔ اب دوسرا وہ جو نیکوکاری کی راہ پر چلا، اس نیکوکاری کی راہ نے اسے کیا پہچان عطا کی؟ نیکوکار۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ ہمارے راستے ہماری پہچان بن جاتے ہیں، ہماری شناخت بن جاتے ہیں۔ آپ یہ سوچو، نام کوئی بھی ہو، اگر وہ شراب پیتا ہوگا تو بولیں گے وہ شرابی ہے۔ نام کوئی بھی ہو، اگر وہ جوا کھیلتا ہوگا تو بولیں گے جوئے باز ہے یہ۔ میں نے کہا نام کوئی بھی ہو، اگر وہ زنا میں پڑا ہوا ہے تو اس کو لوگ وہی جو جس فیل میں ہے وہی اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ اب بائبل یہ کہتی ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں فیصلے کیے۔ ایک نے کہا میں اس راہ پر چلوں گا، اور بائبل کہتی ہے جب ریزلٹ آیا تو ریزلٹ کیا آیا؟ ایک وہ جو بدکاری کی راہ پر چلا، اس کی لائف میں ریزلٹ آیا، تو آؤٹ کم نے اسے کیا دیا؟ مصیبت اور تنگی۔ بائبل 2 راستوں کو الگ الگ بیان کرتی ہے، اور عزیزو یاد رکھو ان 2 آیات میں جو خاص باتیں سکھائی گئی ہیں۔ نمبر 1، ان 2 آیات میں 2 طرح کے لوگ دکھائے گئے۔ کیا دکھائے گئے؟ 2 طرح کے لوگ۔ نمبر 2،
इन आयात में अंदर दो तरह के उनके काम भी दिखाए गए। नंबर 2 मैंने कहा उनके दो तरह के काम भी दिखाए गए, मतलब एक बदकारी में है तो दूसरा नेकोकारी में है। अब नंबर 3 हम ये पढ़ते हैं, अब उनके दो तरह के कामों के नताइज भी दिखाए गए। एक को जलाल और इज्जत और सलामती मिलती है, तो दूसरे को तंगी और मुसीबत मिलती है। जब आपको पता है कि करंट मुझे लग जाएगा अगर मैं बिजली को टच करूंगा, जब आपको पता है मैं आग में हाथ डालूंगा तो मुझे जलन होगी, तकलीफ होगी, हम इन चीजों में बड़े होशियार हैं। लेकिन अफसोस ये कि हमें ये समझ नहीं आती कि मैं आज बदकारी में हूं, मैं ज़नाकारी में हूं, मैं जिस्मानी कामों में, शहवत परस्ती में हूं, उसके नताइज से हम क्यों बेखबर हैं? ऐसा है कि नहीं? बोलिए। समाज में ज्यादातर लोग आने वाले नताइज से बेखबर होकर आंखें बंद करके करते रहते हैं। जब नताइज आते हैं तो फिर उन नताइज को बदला नहीं जा सकता, याद रखिए, कभी भी नहीं बदला जा सकता। बाइबल इंसान को यह सिखाती है कि तुझे अपनी जिंदगी में फैसलों को बड़ा मोहतात होकर लेना। आपके गलत फैसले आने वाला फ्यूचर आपका तबाह भी कर सकते हैं। आपके फैसले आपका आने वाला फ्यूचर बना भी सकते हैं। सब आपके हाथ में है। आमीन। अजीजों, याद रखना, जब फैसले आंखों से और दिल से होते हैं तो धोखा हासिल होता है। एक चीज मुझे याद बताइए, फैसले दिमाग से होते हैं कि दिल से होते हैं? फैसले दिल से भी तो होते हैं ना, फैसले दिल से भी होते हैं। जब आप बात आती मोहब्बत की तो फैसले दिमाग से नहीं होते, वो दिल से होते हैं। तभी तो बाइबल कहती है जब तुम खुदा से प्रेम करते हो तो उसी का अपने पूरे दिल से करना। वहां दिमाग की बात नहीं है, वहां अक्ल की बात नहीं है, दिल की बात है। लेकिन जब फैसलों की बात आती है तो फैसले याद रखना जो आंखों देखे होते हैं, जो दिल से होते हैं, वो कल धोखा भी दे जाएंगे। लेकिन जब फैसले दिमाग से होते हैं ना तो दिमाग आपको आने वाला वक्त भी दिखा देगा। आने वाला कई अभी वो कल सुबह आए कि केस मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे कि वो लड़की उसकी भाग गई है ना, तो उस लड़की ने दिल से फैसला किया, आंखों से किया, पर दिमाग से नहीं किया। कई बार ऐसे ही होता है, हम माँ बाप आने वाला वक्त बच्चों को बता देते हैं, बच्चे जहां तू चाहता है उनके अंदर ये सब चीजें हैं। मैं यहाँ पर आपको, ये बड़ी लंबी बातें हो जाएंगी, मैं इनको छोड़ता हूँ, लेकिन ये चीज जरूर बताना चाहता हूँ। जब आपको फैसले लेने हैं, स्टेप्स लेने के, आप आंखों की मत देखना, आप आंखों का मत सोचना, मत उनसे सलाह लेना, और कभी दिल से भी मत सलाह लेना। जब आपको स्टेप्स लेने के, आपको फैसले लेने के, बाइबल के अंदर दो लोगों का बड़ा भला जिक्र मिलता है। लूत ने फैसला लिया क्या देख कर? लिखा है सदूम अमूरा की तराई देख के। वहां पर आपको लगता नहीं है कि गुनाह बड़ा अट्रैक्टिव होता है, गुनाह बड़ा सरसब्ज होता है, वो बड़ा, यही सदूम अमूरा का है, वो बड़ा सरसब्ज था। और बाइबल कहती है वो आंखों देखे वहां खिंचा चला गया। लेकिन उसी इलाके पर कल आग और गंधक जारी हुई कि नहीं हुई? और बाइबल के अंदर मैं आपको कह रहा हूं कि इंसान को खुदा उसकी जिंदगी में मौके अता करता ही करता है कि वो फैसले ले। अब सुनना, 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। इंसान अपनी जिंदगी में फैसले लेने के लिए 3 तरह की रोशनियों से मदद हासिल करता है। रोशनियां कितनी किस्म की हैं बोलो? 3 किस्म की। पहली रोशनी क्या है? तबाई रोशनी। पहली रोशनी क्या है बोलो? तबाई रोशनी, जिसे ज़मीर की रोशनी कहते हैं। लाइट ऑफ, क्या बोलेंगे उसको? कॉन्शियस, मतलब ज़मीर की रोशनी। इसे तबाई रोशनी भी कहा जाता है। नंबर 2 दूसरी रोशनी क्या है? शरीयत की रोशनी, जिसे लाइट ऑफ लॉ कहेंगे, कानून की रोशनी। नंबर 3 रोशनी क्या है? अंजील की रोशनी, जिसे कहा जाता है लाइट ऑफ गॉस्पल। अब इंसान को रहनुमाई देने के लिए, उसे फैसले लेने के लिए, उसे स्टेप्स लेने के लिए
खुदा ने ये 3 तरह की रोशनियां अता की हैं। अब सुनना, तबाई रोशनी जिसे ज़मीर की रोशनी कहा जाता है, ये खुदा ने गैर अक़वाम को अता की है, जिनके पास ना तो शरीयत है और जिनके पास ना तो अंजील है। आमीन। ये ज़मीर की रोशनी अंजील वालों के पास भी है, शरीयत वालों के पास भी है, और जिनके पास शरीयत और अंजील नहीं है, ये उनके पास भी है। तो वो कौन है बोलिए? भाई कोई शोर हो रहा है। ओके ओके। तबाई रोशनी किनके पास है बोलिए? ये तो ज़मीर की रोशनी है ना, किनके पास है ये? ओ नहीं मेरे लोगों, ये गैर कौमों के पास है। ये किनके पास है? गैर कौमों के पास है। गैर कौम मतलब जो मसीहत से दूर हैं, वो कोई भी क्यों ना हो, जिनके पास अंजील नहीं है, शरीयत नहीं है। दुनिया के अंदर गैर अक़वाम मैं कहता हूं लातादाद हैं। और मैंने कहा फैसले लेने के लिए खुदा ने ये 3 तरह की रोशनियां जमीन पर रखी हैं। तबाई रोशनी किनको दी है? गैर अक़वाम को। शरीयत की रोशनी किनको दी है? यहूदियों को। किनको दी है? यहूदियों को। और अंजील की रोशनी किनको दी है? बोलो चर्च को। चर्च को दी है। हम बाइबल में ये सीखते हैं, अगर सुनो इन 3 रोशनियों से हम मदद लेना, तो ये 3 रोशनियां कभी हमें धोखा नहीं दे सकती, कभी भी हमें नुकसान नहीं देंगी। ये 3 रोशनियां कभी भी हमारे फैसलों के लिए हमें नदामत और शर्मिंदगी का मुकाम नहीं देंगी। बाइबल ये सिखाती है कि इंसान की कामयाबी, उसकी, मैंने कहा इंसान की कामयाबी की जिंदगी, इंसान की जो कामयाब जिंदगी है, उसकी बुनियाद उसके फैसलों के ऊपर है। किसके ऊपर है? इंसान की कामयाब जिंदगी किन के ऊपर है? खुदा आपको ना तो आगे करता है, ना वो आपको पीछे करता है। उसने शाऊर, समझ, अकल इंसान को इसीलिए दी है कि जनाब अब आपका काम आप खुद करोगे। मैं आपको कह रहा हूं कि उसके फैसलों के ऊपर मुश्तमिल है उसकी कामयाब जिंदगी। और ये खुदा ने रोशनियों से दी है कि जब जब तुझे अपनी जिंदगी में उलझाव हो जाए, तू उलझ जाए, तू प्रॉब्लम में पड़ जाए, तो अगर ज़मीर की तुझे समझ नहीं आती तो शरीयत की सुन लेना। अगर शरीयत की भी समझ नहीं आती तो अंजील की सुन लेना। आप ये सोचो फैसला एक लेना है, पर मददगार कितने हैं? 3 हैं। लेकिन जब फैसला आंखों से होता है, जब फैसला दिल से होता है, तो फिर धोखा आता है, शर्मिंदगी आती है, रुसवाई आती है। बोलो आती है कि नहीं आती? और मैं आपको यहां ये बता रहा हूं कि 2 किस्म के लोग थे। एक वो जिन्होंने बदकारी को चुना, और दूसरे वो जिन्होंने नेकोकारी को चुना, बावजूद इसके कि खुदा ने दोनों को 3 तरह की रोशनियां दी थी। ऐसा नहीं है कि एक आदमी आगे निकल गया तो उसके पास कुछ ज्यादा था, और ऐसा नहीं कि जो पीछे रह गया तो उसके पास कुछ था ही नहीं। याद रखना, एक जैसा फजल सबको मिला है, एक जैसा मसा सबको मिला है, एक जैसी बरकत सबको मिली है। आगे वही जाता है जो उस पर काम करता है, आगे वही जाता है जो उसमें ईमानदारी दिखाता है, आगे वही जाता है जो उसी पर फोकस करता है, और पीछे वो रह जाता है जो उन चीजों को इग्नोर करके, नजरअंदाज करके और तरह की चीजों पर ध्यान करता है। बाइबल ये कहती है, अगर हम चाहते हैं जनाब आने वाली जिंदगी हमारी सुखी रहे, आने वाली जिंदगी में हमें नदामत और शर्मिंदगी ना हासिल हो, ये 3 तरह की लाइट्स हैं जो खुदा ने जमीन पे रखी हैं, जिनसे इंसान मदद ले सकता है। सब बोलो आमीन, सब बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है मुसीबतें उसी की लाइफ में होंगी, बाइबल कहती है दुख उसी की लाइफ में होंगे, तंगी उसी की लाइफ में होगी जो शेवत परस्ती की राह पर है, जो अपने जिस्म की सुनता है, जो बुराई के अंदर है। लेकिन ये गारंटी है कि जो नेकोकारी के अंदर है, पीस आएगा उसकी लाइफ में, ऑनर आएगा उसकी लाइफ में। बोलो आमीन। बाइबल कहती है ग्लोरी आएगी उसकी लाइफ में।
जो नेकोकारी के अंदर है। हो सकता है आज नेकोकारी में चलने वाले की लाइफ और बदकारी में चलने वाले की लाइफ आपको बराबर लगे। ऐसे नहीं होता। जो बहुत क्लास में होशियार है और जो क्लास में नालायक है, एक वक्त में दोनों बराबर हैं जब रिजल्ट नहीं आता, है ना। किसी को कुछ नहीं लगता, उसको ना तो बुराई लगती है और इसको भी नेकोकारी नहीं लग रही होती क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन वेट करे 1 साल 2 साल, जब रिजल्ट का टाइम आएगा खुदा इसको सरप्राइज करके रख देगा। क्योंकि रिजल्ट नताइज का वेट करो अपनी लाइफ में। वक्त से पहले कभी खुलासा अपने लिए ना निकाल दो। वक्त से पहले कभी अपने लिए बुरा मत बोल दो। क्या फायदा मेरी नेकोकारी का, क्या फायदा मेरी दुआओं का, क्या फायदा मेरे रोजे का, क्या फायदा खुदा के साथ चलने का। क्योंकि अभी तक अगर वो मेरे साथ है जो बुराई में है और मैं अच्छाई में हूं, तो एक जैसे ही तो हम चल रहे हैं, एक जैसा ही। अगर वो तंगी में तो मैं भी तो तंगी में हूं। तो चाहिए तो ये कि खुदा मुझे बरकत दे, चाहिए तो ये कि खुदा रास्ते खोले, फेवर दे। लेकिन गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। आमीन। खुदा आपको याद रखना, आपका वेट करने के लिए नहीं है। मैंने कहा आपका वेट आपका लेट करने के लिए नहीं, आपको ग्रेट करने के लिए है। जब खुदा आपको वेट करा रहा है तो आपको लेट कराने के लिए नहीं, बोलो ग्रेट करने के लिए आपको। इसीलिए आज आप अपने आप को मसावी कह सकते हो, इक्वल कह सकते हो, बराबर कह सकते हो। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब खुदा आपकी हर चीज का आपको रिजल्ट करके वापस देगा। बोलो आमीन। ऊंची आवाज में बोलना हालेलुया। इसलिए अजीजों, कलाम खुदा के अंदर ये सीखा जाता है, हमारे काम या अमाल खुदावंद के बारे में हमारी सोच और हमारे रवैये को जाहिर कर देते हैं। मैंने कहा हमारे काम और हमारे अमाल खुदा के बारे में हमारे रवैये को, हमारे अमाल को जाहिर कर देते हैं। अजीजों, एक चीज सुनो, क्या अमल का रद्द अमल नहीं होता? होता है कि नहीं होता? हर एक्ट का रिएक्ट होता है। आपने अमल किया तो रद्द अमल खुदा करेगा कि नहीं करेगा? हमारी तरफ से अमल होता है। अगर नेकोकारी का है तो रद्द अमल क्या होगा? जलाल का, इज्जत का, और क्या पढ़ा हमने? 3 चीजें, जलाल का, इज्जत का और सलामती का। ये उसकी तरफ से रद्द अमल है। हमने बदकारी का अमल किया, उसकी तरफ से रद्द अमल क्या होगा? मुसीबत का। और तो मैंने कहा हर अमल का रद्द अमल है। ये इस यूनिवर्सल का लॉ है, खुदा का लॉ है, डिवाइन लॉ है ये, कि तुम जैसा अमल दिखाओगे तुम्हारे लिए वैसा रद्द अमल किया जाएगा। एक बात अपने जहन में बिठा लो, याद रख लो कि खुदा कवानीन को कभी नहीं बदलता, उसकी तरतीब को चेंज नहीं करता। बाइबल ये कहती है वो अपनी असल हालत और अपनी असल सदाकत में कायम और दायम रहती है। हम उनको कैसे लेते हैं ये हम पर डिपेंड करता है, लेकिन वो अपनी शरअ, अपने कानून को बदल नहीं सकता। हमने कहा खुदा हम तो चलेंगे बदकारी की राह पर, तो उसने कहा बच्चा जा, फिर तेरी लाइफ में कोई रोक नहीं पाएगा तंगी और मुसीबत आने को, कोई भी रोक नहीं पाएगा। और उसने ये हमारे स्टेप्स का रद्द अमल दिया है। और मैंने कहा हम फिर आते हैं आने वाले वक्त में हम क्या चाहते हैं। मैं आपको पूछूं, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में? तो आप तो बोलोगे ना सलामती चाहते हैं, आप तो बोलोगे इज्जत चाहते हैं, आप तो बोलोगे जलाल चाहते हैं। पर सवाल बड़ा ये नहीं है कि आप क्या चाहते हो, सवाल बड़ा ये है आप क्या करते हो। सवाल बड़ा क्या है, आप क्या करते हो। क्योंकि जो करते हो वो करते नहीं हो, वो बोते हो। वो क्या करते हो? हमारे काम, कई बार मैं कहता हूं ना, हमारे बीज हैं, हमारे बीज हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगेगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगेगा।
اور یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صداقتیں کبھی نہیں خدا بدلتا، قوانین کبھی نہیں بدلتا، وہ انہی چیزوں کے اندر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا ہے۔ آپ کو کیسے اپنا فیوچر چاہیے یہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو، خدا ڈیسائیڈ نہیں کرتا۔ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے پشاور جانا ہے کہ آپ کو راولپنڈی جانا ہے، آپ کو پنجابی لوگوں سے ملنا ہے کہ آپ کو پٹھان لوگوں سے ملنا ہے، آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ جناب آپ راولپنڈی کی گاڑی میں بیٹھ کر سوچو ابھی آ جائے گا پشاور، ابھی آ جائے گا، اور ایسا بھی نہیں ہوتا۔ آپ بدکاری کی راہ پر چل کے یہ سوچو گے ابھی عزت آ جائے گی، ابھی جلال آ جائے گا، ابھی سلامتی آ جائے گی، وہ سب کچھ تو نہیں آئے گا، پر جو آئے گا اسے آنے سے کوئی روک نہیں پائے گا۔ تو کیا آئے گا؟ نمبر 1 بولو، تنگی آئے گی۔ اب یہ تنگی یاد رکھنا کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ وہ آپ کو مالی طور پر تنگی دے سکتا ہے، کھانے کی تنگی دے سکتا ہے، رہنے کی تنگی دے سکتا ہے، سکون کی تنگی دے سکتا ہے، آپ کو بے چینی ہر سیکشن میں۔ یہ یاد رکھو وہ اتنا تنگ کر دے گا کہ لوگ مرنا بھی چاہیں گے اور موت کی بھی تنگی ہوگی ان کے لیے، وہ مر بھی نہیں پائیں گے۔ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ ہم کے خدا بولو، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا آنے والے وقت میں خدا ہمارے ساتھ کیسا چلے۔ عزیزو آنکھیں کھول کر چلو، کچھ ایسا سوچ کر چلو کہ خدا کل آپ کے لیے بھی جناب آپ کو کچھ اچھا دینے کے لیے تیار ہو۔ سب بولو آمین۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا مصیبت اور تنگی پہلے کس کو دے گا؟ پہلے کس کو دے گا؟ کس کو؟ یہودی کو دے گا۔ بائبل کہتی ہے پہلے تنگی اور مصیبت خدا دے گا یہودی کو اور پھر بعد میں یونانی کو۔ فرق کیوں ہے؟ فرق کیوں ہے؟ اس کو سمجھنا ذرا۔ فرق انہی 3 روشنیوں کا چکر ہے ان میں۔ ان الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا عدالت اس روشنی کے مطابق کرے گا جو خدا نے انسان کو عطا کی ہے۔ اب سوچو غیر قوموں کو تو ایک ہی روشنی دی نا، یونانی غیر قوم تھے نا، ان کو ایک روشنی دی، اور سوچو یہودیوں کو 2 طرح کی روشنی دی، ان سے زیادہ دیا کہ نہیں دیا؟ غیر قوموں سے زیادہ دیا۔ کہا تم ضمیر کی نہیں سن پا رہے تو میں تمہیں شریعت بھی دیتا ہوں، چلو اس کی سن لینا۔ اب کہہ رہا ہے کہ اگر تم لینے میں دگنے ہو تو میں تمہیں سے پہلے شروع کروں گا۔ میری بات سمجھ آتی ہے تو بولو اونچی آواز میں ہاں۔ میں نے کہا بائبل یہ کہتی ہے کہ پہلے یہودی کی عدالت کرے گا، بعد میں یونانی کی کرے گا۔ پہلے تنگی دے گا، مصیبت دے گا یہودی کو، بعد میں یونانی کو۔ یونانی مطلب غیر قوم ہے، اس لیے پہل ان کی ہے کہ دنیا میں وہ چنی ہوئی قوم ہے، وہ خدا کی قوم ہے۔ اگر وہ برکتوں میں اور وہ وعدوں میں دوسروں سے افضل ہیں تو جواب دہی میں بھی وہ دوسروں سے پہلے گئے۔ جواب دہی میں بھی غیر قوموں کو چنا نہیں گیا۔ کن کو چنا گیا؟ یہودیوں کو۔ غیر قوموں کو وعدے نہیں دیے گئے، کن کو دیے گئے؟ برکتیں کن کو دی گئیں؟ یہودیوں کو۔ کہتا تم ہر چیز میں فضیلت رکھتے ہو، ہر چیز میں اولیت رکھتے ہو، تو بھائی پہلے میں پھر تمہیں سے پوچھوں گا، عدالت بھی تمہیں سے کروں گا۔ میں آپ کو یہاں یہ بتا رہا ہوں، اس لیے خداوند نے کہا کہ چنے ہوئے لوگ اگر بدکار ہو جائیں گے تو پہلے میں عدالت بھی انہی کی کروں گا، انہی کو کٹہرے میں کھڑا کروں گا، انہی کا نیائے شروع کروں گا۔ اگر ہر آدمی عدل کا سوچ کر چلے نا کہ کل مجھ سے پوچھ پچایا ہوگا، تو میں یہ کہتا ہوں کبھی انسان اپنی زندگی میں خطا کر ہی نہ پائے۔ لیکن غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ جب انسان آنے والا وقت سوچ کے نہیں چلتا۔ ہم دھرتی پہ جینے کے لیے نہیں آئے گے، یاد رکھنا۔ جینے کے لیے تو یروشلم ہمارے لیے ہے، یہاں پر کچھ کرنے کے لیے آئے گئے۔ بولو آمین۔ جینے کے لیے آئے کہ کرنے کے لیے آئے؟ کیونکہ جو کرنے کے لیے آئے گے نا، اسی سے جیون پیدا کرے گا وہ، یا تو ابدیت کا جیون یا پھر آگ کی
झील का जीवन। बाइबल के अंदर याद रखना, खुदा ने इंसान की नस्लों को 3 ग्रोहों में तकसीम किया है। आइए पढ़िए इसको जरा। पहला कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी 32 आयत को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी 32 आयत को पढ़िए। लिखा है, तुम न यहूदियों के लिए ठोकर का बायस बनो, ना यूनानियों के लिए, ना खुदा की कलीसिया के लिए। नंबर 1 बोलो यहूदी, ऊंची आवाज में बोलो। नंबर 1 यहूदी। नंबर 2 बोलो यूनानी जो गैर कौमे है। नंबर 3 बोलो कलीसिया। खुदा ने, मैंने कहा, लोगों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगर 3 हिस्सों में तकसीम किया तो बोलो उनकी रहनुमाई के लिए 3 तरह की लाइट्स दी कि नहीं उन्हें, 3 तरह की रोशनियां दी उन्हें। और खुदा हर किसी की अदालत उसी रोशनी के तहत करेगा। अगर कोई कहता है कि खुदावन मेरे पास तो शरीयत नहीं थी, अगर कोई कहता है खुदावन मेरे पास तो अंजील नहीं थी, तो खुदा ने क्या बोला? मैं तेरे अंदर एक चीज को रख चुका हूं। वो क्या है? ज़मीर। बोलो क्या है? ज़मीर। आप ये सोचोगे, अगर कोई भी इंसान चोरी, पाप, कुछ भी करने के लिए अपने आप को उस काम के लिए वक्फ करता है, तो हल्की सी आवाज उसके अंदर जरूर आएगी। आपको कोई भी बताने वाला ना हो और ज़मीर हमेशा आपके साथ रहता, वो बोलेगा ये मत करना, ये मत। आती आवाज कितनों को आती है? ऊंची हाथ करना। ज़मीर बोलता है आपसे। ये सबसे बड़ी अदालत है और खुदा हमेशा इसी के वसीले से बात करता है। ये खुदा की आवाज हम तक पहुंचाने के लिए मददगार है। अगर कोई कहता है मैंने अंजील नहीं सुनी, मेरे पास नहीं है, अगर कोई कहता है मूसा की शरीयत भी मेरे पास नहीं है, तो खुदा उनका उज़र नहीं सुनेगा। कहेगा मैंने तुम्हारे अंदर ज़मीर को रखा था, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं था? मैं आपको कह रहा हूं कि हर किसी की अदालत खुदा उसी रोशनी के मुताबिक करेगा जिसके अंदर वो चल रहा है। और यहूदियों की इसलिए वो कहता है मैं तुम्हें पहले सजा दूंगा क्योंकि तुमको मैंने दुगना दिया है, तुम्हें ज़मीर भी दिया और तुम्हें मैंने शरीयत भी दी है। अगर तुम में से कोई बदकार होगा तो वो पहले सजा पाएगा। किसकी निस्बत? बोलो यूनानी की निस्बत, गैर कौम की निस्बत। इसलिए खुदावन की तरफ से मैंने कहा इन 3 ग्रोहों का अदालती निजाम खुदा के मुताबिक उसी रोशनी के तहत होगा जिसको उसने हमें अता किया है। सब बोलो आमीन। आइए एक हम स्टोरी को पढ़ेंगे, लूका की इंजील उसका 15वां बाब, और हम उसकी पढ़ेंगे 11 आयत से। यहां पर पढ़ेंगे 2 किस्म की जिंदगियों का यहां पर जिक्र मौजूद है। लूका की इंजील 15वां बाब उसकी 11वीं वर्ष में हम ये पढ़ते गए, एक शख्स के 2 बेटे थे, एक उजाड़ू था और एक घर में रहने वाला। वो फजूल खर्च नहीं था, आप उसे कह सकते हो वो कंजूस आदमी था। कंजूस से मुराद ये नहीं है कि वो मतलब पैसा उजाड़ने वाला नहीं था, पैसे की कदर करने वाला था। बाइबल कहती है ऐसे हुआ कि छोटे बेटे ने कहा ऐ बाप तेरी प्रॉपर्टी में, उसकी अपनी नहीं थी, कहता है तेरी प्रॉपर्टी में जो मेरा हिस्सा आता है वो मुझे दे दे। और बाइबल कहती है वक्त से पहले उसने जायदाद की तकसीम को अपने लिए मांग लिया था। और कलाम खुदा कहता है बाप ने भी दे दिया उसे, बाप ने उसका हिस्सा उसे दे दिया। जमीन हो सकती है, पैसा हो सकता है, और लिखा है वो सब पैसा लेकर दूर दराज किसी मुल्क में चला गया। 13वीं आयत से पढ़ेंगे। अब बाइबल क्या कहती है? बद चलनी में, ये बदकारी का राह इसने चुना। 2 लोग थे उस घर के, एक जैसा माहौल था, एक जैसी तरबियत थी, मैं कह रहा हूं एक जैसा उनको सब
शिक्षा, तालीम, तरबियत, परवरिश, खाना पीना सब एक ही जैसा था। फैमिली में होता है, कोई आगे चला जाता है, कोई पीछे रह जाता है। बाइबल कहती है 2 बेटों में से एक ने कहा मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे जाना है। और लिखा है उसके बाप ने उसका उससे दे दिया। और आप पढ़ोगे सारा माल उसने बदकारी में उड़ा दिया। और बदकारी का रिजल्ट क्या आता है? क्या पढ़ा था रोमियो में? रिजल्ट क्या आता है? बोलो, मुसीबत और तंगी। आगे पढ़ना तो लिखा है वो मोहताज हो गया। क्या हो गया? बोलिए, मोहताज हो गया। शहवत परस्ती कभी अच्छा रिजल्ट नहीं लाएगी। ज़नाकारी कभी अच्छा रिजल्ट नहीं लाएगी। जिस्म के काम कभी भी आपको ऊंचा नहीं करेंगे। बाइबल मुकद्दस तभी तो हमें आगाह करती है, कभी आंखों का फैसला मत सुनना, कभी दिल का फैसला मत सुनना। एक मैं आपको बात बताता हूं, जादू की कई किस्में हैं। कई किस्में हैं ना। सबसे डाढ़ा जादू कौन सा है? कौन सा डाढ़ा है? नहीं, काले से भी ऊपर है, बंगाली से भी ऊपर, इश्क का जादू। ये काले से भी ऊपर है। इश्क का जादू जब चढ़ जाता है ना सर पे, तो याद रखना वहां काला पीला नीला नहीं चलता। ये सबसे डाढ़ा जादू है, इश्क का जादू। इसलिए अजीजों याद रखो, बाइबल ये कहती है बदकारी की राह चुनने के लिए। मैं सही कह रहा हूं? कई केस सुने हैं जनाब, कई केस सुने हैं। लोग आने वाला वक्त भूल जाते हैं कि क्या होने वाला मेरे साथ, लेकिन वो गलत फैसलों में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिल से होता है। और दिल का फैसला ये काले जादू से भी डाढ़ा ये जादू है। मैं बच्चों को इसलिए कह रहा हूं ना कि ये आने वाला वक्त इनका बना सकते हैं। आमीन। फैसले एक बार होते हैं कि बार बार होते हैं? एक ही बार होते हैं। याद रखना, आज आप वेट करके, इंतजार करके आस्तर की तरह एक अच्छा लाइफ पार्टनर ले सकते हो। आमीन। सारा की तरह इसहाक जैसे खुदा आपकी लाइफ में भेज सकता है, लेकिन वो आपकी तैयारी भी तो देखेगा ना, कि नहीं देखेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं, बाइबल कहती है अगर आपने दिल से फैसले लिए, आंखों से लिए, तो धोखा हो जाएगा। लेकिन यहां से, माइंड से, आमीन, आने वाले वक्त में हम सीखेंगे दो तरह की आइज है हमारी। एक आइज तो ये है और एक माइंड की आइज है। और माइंड की आइज आपको वो दिखा देती है जो ये नहीं दिखाती। इसलिए हमेशा कहा जाता है धीरे, कहते नहीं सोच के दसांगे, सोच के, तो वो फैसले कभी धोखा नहीं देते। बोलो आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं, इसने सारा माल कहां उड़ा दिया? बदकारी में। रिजल्ट क्या आया? क्या रिजल्ट आया? मोहताज हो गया। लिखा है खाने को कुछ नहीं है, सोने को जगह नहीं है। बाइबल कहती है याद आया कि मेरे बाप के घर में तो और नौकर मुझसे अच्छी लाइफ जी रखे गए। सूरों के साथ उनके तबेले में सोने लगा, सूरों से फलियां छीन के खाने लगा। सोचो, एक घर का शहजादा रुल गया। कैसे रुल गया? बदकारी से, बदकारी से। बाइबल मुकद्दस के अंदर कभी वक्त हुआ तो हम सीखेंगे सेक्सुअल चीजों के बारे में कि क्या बुरे रिजल्ट उनके आते हैं। बाइबल कहती है वो टुकड़े के मोहताज हो जाते हैं। किसके मोहताज? रोटी के मोहताज हो जाते हैं। इसलिए तो शाह लोग लड़कियों के चक्करों में पड़ के जनाब टुकड़े के मोहताज हो गए हैं। ऐसा देखा है कि नहीं देखा? हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, इस आदमी ने, चलो उनको तो छोड़ो, इसी को देख लो, लड़कियों के चक्कर में क्या पाया इसने? रोटी का मोहताज हो गया। कोई सुख नहीं लाइफ में। और याद आता है कि मेरे बाप के घर में तो मुझसे अच्छी लाइफ उसके नौकर जीते गए। मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा कुछ भी करते हो तो आइंदा का सोच के करना, रिजल्ट को सोच के करना। क्योंकि दो तरह का जीवन बताया जा रहा है, उनके दो तरह के काम बताए जा रखे हैं, उनके दो तरह के रिजल्ट्स भी बताए जा रखे हैं। अगर बच्चों इस राह पर चलोगे, ये वाले काम करोगे,
तो नताइज को आने से कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। कोई ना तो दुआ, ना फास्टिंग, ना तुम्हारा बोना, कुछ भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो चीजें खुदा ने सेट की है। मैंने कई बार आपको समझाया है, जहां पाप होगा अदल उसके पास ही होगा, है ना। जहां गुनाह होगा अदल उसके, और जहां पर अदल होगा वहां गुनाह जरूर होगा। खुदा ऐਵੇਂ नहीं किसी को मार देता, ऐਵੇਂ नहीं सजा देता, वहां पर गुनाह जरूर होगा। बाइबल मुकद्दस ये गवाही देती है कि 3 तरह की रोशनी हासिल करने के बावजूद हम अपनी लाइफ में फेल हो जाएं, बावजूद इसके कि पढ़े लिखे हो, बावजूद इसके कि अच्छे परिवार से हो, बावजूद इसके कि हमें खुदा ने प्रिविलेज दिया है कि हर संडे, हर फ्राइडे अच्छी टीचिंग को लेते हो। हमसे ज्यादा कोई मूर्ख होगा, कोई बदबख्त होगा? बोलो, को होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने ये मौका दिया है। ये आईना है मेरा, ये आपका। बोलो आमीन। मैं कई बार आपको कह चुका हूं, ये नबूवत है सबसे बड़ी, और इस नबूवत को पूरा होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। बाइबल की बातें सच और बरहक हैं, और खुदा जब बोलता है हमें उन चीजों को कबूल करना चाहिए कि खुदा मैं रिसीव करता हूं, ये आने वाला मेरा वक्त है। आमीन। सब बोलो हालेलुया। बाइबल में क्यों खुदा ने ऐसी बातें लिखाई हैं? क्या उसको आपकी फिक्र नहीं है? मैं तो हमेशा जब भी बच्चा बाहर जाता है ना, एक लंबा हदायतनामा इसे देता हूं। साइकिल ऐसे चलाना, मत इंतजार करना, मत किसी के साथ बात करना, मत किसी से कुछ लेके खाना। क्यों? मुझे इसकी फिक्र है। तो ये बातें क्यों खुदा ने लिखाई हैं? फजूल में? वो अपने बच्चों की फिक्र करता है कि मेरे बच्चों, हेवन में तुम्हारे लिए सेट कर चुका हूं, हेवन की बरकतें मैं तुम्हारे लिए तरतीब दे चुका हूं। सोने की सड़कों पर चलोगे तुम, आसमानी मेवे खाओगे तुम, मूसा, इब्राहिम, दाऊद के साथ उठो बैठोगे तुम। ये खुदा का प्लान है। और शैतान का क्या प्लान है? बर्बाद करना, डिस्ट्रक्शन को वो हमारी लाइफ में लाना चाहता है। वो कोई भी लिंक छोड़ देगा आपकी लाइफ में, कोई भी लिंक, कोई भी शख्स आ जाएगा आपकी लाइफ में, पूरी लाइफ को बर्बाद करने के लिए कोई भी आ जाएगा। लेकिन तब अगर आप होश भूल चुके हो, तब आप अक्ल भूल चुके हो, और ये 3 रोशनियां भूल चुके हो, तो मैं ये बोलूंगा फिर आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है। मत सोचना कि जादू था, क्योंकि इश्क का जादू, मैंने कहा, वो काले, वो पीले, नीले, सावे से भी वो डाढ़ा जादू है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। आमीन। समझ आती है तो ऊंची आवाज में बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल के अंदर ये सीखते हैं, कलाम ये कहता है ये 2 तरह के लोग थे, एक घर में रहा और एक चला गया। और बाइबल कहती क्या लेके आया? जब वो वापस आया ना, तो उसका बाप, सोचो उसको, उसका घर उसने कैसे छोड़ा था। अच्छे कपड़े, जनाब स्त्री हुए, अच्छी जूती, लेकिन जब वापस आया तो क्या उसका फकीरों वाला हाल, नंगे, मैं कहता हूं ऐसे भिखारियों के जैसा उसका हाल था। लेकिन तो भी बाप की मोहब्बत का अंदाजा करो, दौड़ कर उसे गले लगा लिया। खुदावन खुदा, बाइबल कहती है, उसी को इज्जत देगा। ये उसने तय कर लिया है किसको इज्जत देगा। बाइबल कहती है उसी को वो पीस देगा। ये उसने डिसाइड कर लिया, उसी को जलाल देगा जो नेकोकारी में चलता है, जो नेकोकारी में चलता है। आज आप शायद दुआ करने से आपको नताइज ना मिले, कल शायद दुआ करने से नताइज ना मिले, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए। वो वक्त आएगा जब खुदा आपका और ज़नाकार लोगों का फर्क वासिया कर देगा, और आप बोलोगे अच्छा हुआ जो मैं इस राह पर नहीं चला, नहीं तो इसी की तरह मैं भी रोता आज है। बोलो समझ आती है? आमीन। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आइए पैदाइश की स्टोरी को पढ़ते के, पैदाइश 37वां बाब और उसकी 2री वर्स को पढ़ना। पैदाइश 37वां बाब और उसकी 2री वर्स। याकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। यह लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा,
और जुल्फा के बेटों के साथ रहता था और वो उनके बुरे कामों की खबर अपने बाप तक। ये कुछ अजीब नहीं है कि एक जैसे माहौल में, एक जैसी तरबियत में और एक जैसी जिंदगी में लोग अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। ये कुछ बोलो अजीब नहीं है। एक ही घर में सोचो स्पिरिचुअल परिवार था कि नहीं। इब्राहिम का बेटा याकूब एक रूहानी परिवार है बाइबल कहती है, और रूहानी परिवार में से ज्यादा बच्चे बदकारी में पाए गए। लिखा है 11 बेटे यूसुफ के बुरे काम, याकूब के बुरे कामों में पाए गए और एक यूसुफ ही था, और बाइबल कहती बचपन से नेकोकारी में था। लिखा है उसकी मौजूदगी में उसके भाई कंफर्टेबल नहीं होते थे, वो उसकी मौजूदगी में बेचैनी फील करते थे और चाहते थे ये जल्द चला जाए, क्योंकि किसी को चैट करना होता था जनाब, किसी को गर्लफ्रेंड को फोन करना है, किसी को पार्टीज करनी है, किसी को ड्रिंक करनी है, सबके ऐसे ही काम थे 11 के। और 11 के 11 एक दूसरे के काने थे, एक दूसरे के राजदार थे, और वे एक दूसरे की मौजूदगी से परेशान नहीं होते थे, क्योंकि सब एक दूसरे के राजदार थे, कवर करने वाले थे। लेकिन एक ही तो था ना जो कवर नहीं करता था। वो बताता था बाप ये भेड़ गुमी नहीं है, इन लोगों ने बेच के ना, इसने बेच के अपनी गर्लफ्रेंड को लैपटॉप लेके दिया है, इसने जनाब आईफोन लेके दिया है, इसने जनाब कपड़े लेके दिए, ये इन्होंने बेची है। खुदा बाप ये गुमी नहीं है। अगर कोई बोल दे बाप वो भेड़िया खा गया, तो वो बोलेगा बाप इन्होंने जनाब वो बेची और पार्टी की है इन लोगों ने। वो एक एक राज जाकर अपने बाप को बता दिया करता था, और बाइबल कहती है बचपन से खुदा उसको देख रहा था, फेवर थी उसके ऊपर। ऐसे नहीं कि कोई आगे चला गया और कोई पीछे रह गया। यूसुफ तो सबसे छोटा था ना तो टैलेंटेड था, ना तजर्बेकार था, ना नॉलेज में ज्यादा है, ना उम्र में, ना मैच्योरिटी में। आप सोचो जो तजर्बे में ज्यादा है, जो मैच्योर लोग हैं, जो उम्र में ज्यादा, वो कहां थे? बोलो पाप में। वो कहां थे बोलो? तो कैसे थे पाप में? उनके फैसले ले गए ना, उनकी शहवत परस्ती उनको ले गई। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है, साफ लिखा है कि खुदा यूसुफ को देख रहा था उसके बचपन से ही। मैं आपको पहले कह चुका हूं, खुदा तरफदार नहीं है कि जनाब वो अरूज को आगे कर देगा और मिलिया को पीछे कर देगा। वो ऐसा खुदा नहीं है। खुदा उनके चलने के मुताबिक उन्हें आगे करता है और उन्हें पीछे करता है। उनके फैसले उन्हें आगे कर देते हैं। लिखा है कि यूसुफ, लिखा है, अपने भाइयों में अलग पाया गया और खुदा ने उसे बचपन में 17 साल की उम्र में से ख्वाब देने शुरू किए। मैं तुझे आने वाले वक्त में ग्रेट करूंगा, आने वाले वक्त में बहुत ऊंचा करूंगा, आने वाले वक्त में तेरे भाई तेरे आगे सजदा करेंगे। चांद सितारे उसके भाई तो थे, वो गंदम के फूले उसका परिवार ही तो था। और बाइबल कहती है उसके सपनों से उसके भाई, उसके माँ बाप चिढ़ते थे। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप खुदा के साथ सिंसियर हो तो कोई चीज ऑनर में, पीस में और जलाल में आपको जाने से रोक नहीं सकती। आमीन। वो खुद डोर्स ओपन करेगा आपके लिए। आप उन चीजों को जब अट्रैक्ट कर लेते हो तो वो आप उन चीजों की तरफ नहीं जाते, वो चीजें आपकी तरफ खींची चली आती हैं। बाइबल कहती है यूसुफ ने बचपन से मन बना लिया था, जो मेरे भाई करते वो मैं नहीं करूंगा, जो मेरे भाई पीते हैं वो कभी मैं नहीं पीऊंगा, मैं कभी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। आपको लगता है यूसुफ का ये दिल का फैसला था कि उसके माइंड का फैसला था? ये उसके दिमाग का फैसला था। आपके फैसले आपकी डेस्टिनी चेंज कर देते हैं, आमीन, आपका कल बना देते हैं। आज मैं कहता हूं मेरा बच्चा आने वाले वक्त में पास्टर होगा, तो मतलब ये होगा आज का मेरा ये फैसला है। आप कहते हो मैं आने वाले वक्त में डॉक्टर बनूंगा, तो ये आज का फैसला आपका कल बना देता है। अगर बोलते हो कि मेरी जिंदगी में कभी प्रोफेसी नहीं हुई, आप मुझे अपना फैसला बताओ तो मैं आपको आपकी प्रोफेसी बताता हूं। आप अपना मुझे
फैसला बताओ कि मैं ये फैसला ले चुका हूं, तो मैं आपको आपकी नबूवत बताऊंगा कि आने वाला वक्त आपका क्या होगा। बाइबल कहती है यूसुफ अपने बाप का क्यों प्यारा था, क्यों उसने उसे कलरफुल कपड़े लेके दिए थे। उसकी वजह एक ही थी कि इसके बाप ने देखा कि जब यूसुफ भेड़ें चराने जाता है, 100 लेके गया तो 100 पूरी आई वापस, और इसका भाई शमौन लेके गया 100, तो जनाब 80 आई, तो 20 पार्टी में गिफ्ट्स में चली गई और तरह के कामों में। याकूब को, आपको पता यूसुफ ने याकूब ने कितने साल भेड़ें चराई थी? 14 साल, क्योंकि वो भी लव के चक्कर में था, राखल से उसका टांका जुड़ा था, और बाइबल कहती राखल से प्रेम के चक्कर में 14 साल उसी घर में भेड़ें चराता रहा। और कलाम ये कहता है कि उसे भेड़ों का पता था कि ये कैसे बढ़ती और कैसे कम होती, उसे पता था। उसे अपने 11 बच्चों का भी पता था, ये कम लेके आते तो कैसे कम आती है, और ये पूरी लेके आता है तो कैसे पूरी आती है। और बाइबल गवाह है उसे अपने बाप की भी फेवर थी और उसे खुदा की भी फेवर थी। खुदा ना तो आगे करता है ना पीछे, आपके फैसले ये तय करते हैं कि आप कहां जाओगे। बोलो आमीन। और बाइबल कहती है कि उसके भाइयों की जिंदगी में कल आई तंगी, मोहताजी आई कि नहीं, क्योंकि उनके मुल्क में कहत था, और जहां पर यूसुफ था वहां सब कुछ फरावानी में था, हर चीज फरावानी में थी। वक्त आया कि यूसुफ को ऑनर भी मिला, वक्त आया जब यूसुफ को ग्लोरी भी मिली, वक्त आया जब यूसुफ की लाइफ में पीस भी आया। बोलो ये 3 चीजें आई कि नहीं आई? बाइबल कहती है अगर तुम नेकोकारी में चलोगे तो मैं तुम्हें सलामती भी दूंगा, जलाल भी दूंगा, और तुम्हें बोलो इज्जत भी दूंगा। तो यूसुफ की लाइफ में आई ये सब चीजें, लेकिन उसके भाई बुरे कामों में तो क्या आया उनकी लाइफ में? लिखा है वो तंगी के मारे मिस्र में गए, और यूसुफ को ना जानते थे कि वो हमारा ही भाई है। और बाइबल कहते तब वहां पर वो सपना यूसुफ का पूरा हुआ था कि जब उसके भाइयों ने उसे सजदा किया था, उसे याद आया था कि ये खुदा ने मुझसे बात की थी कि मैं तुझे इतना ग्रेट कर दूंगा कि तेरा परिवार तेरी ग्लोरी को एक्सेप्ट करेगा। बोलो आमीन। क्या ये यूसुफ के लिए क्या है? मैं एक चीज जानता हूं, कभी भी स्टोरी को सुनने के लिए नहीं बल्कि लर्निंग के लिए और उसे अपने ऊपर लागू करने के लिए सुनना। नंबर 1 सीखने के लिए और अप्लाइमेंट करने के लिए, उसे अपने ऊपर लागू करने के लिए उसे सुनना, और तभी आपको उस जिंदगी का रिजल्ट नजर आएगा, आपको नताइज खुदा देगा। बोलो आमीन। आइए अपने सर झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। ये 2 मुख्तलिफ स्टोरीज में हमने ये सीखा है कि खुदा किस तरह से बदकार लोगों की जिंदगी में वो चीजें लेकर आता है, और किस तरह नेकोकार लोगों की जिंदगी में उन्हें इज्जत, उन्हें जलाल, और बाइबल कहती है उन्हें सलामती में खड़ा करता है। मेरी ये दुआ है आप अपने फैसलों के लिए कभी नदामत ना देखो। मेरी ये रूह में और दिल से ये दुआ है हमेशा आपके फैसले आपको ऊंचा करें, आपके फैसले हमेशा आपको इकबाल मंदी में लेके जाएं। आप इन 3 रोशनियों के तहत चलो और कभी भी आंखों देखे मत चलो, यीशु के नाम में।